بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سائمہ بھٹی، ربی کی آواز انٹرنیشنل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ خواتین کا معاشرے میں کیا کردار ہے، اور معاشرے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ادھورا ہے. تو اس حوالے سے خواتین کام بھی کرتی ہیں، خواتین گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتی ہیں، بہت ساری سی خواتین باہر کا کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، خاندانی نظام کو دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین ایسی بھی ہیں جو اپنے ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دوسری خواتین کے حق کے لیے بھی لڑتی ہیں. ان خواتین کے لیے جو اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی، ان خواتین کے لیے جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی. اس میں خاص طور پر صحافی خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، اور کیا کیا مسائل درپیش ہیں ان کو، اس حوالے سے ہم اپنے میڈیا کا کردار اور اپنے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے. تو انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، بہت سارے سے مہمان یہاں پہ آئے ہیں، بہت ساری سی خواتین یہاں پہ آئی ہیں، مرد حضرات بھی یہاں پہ مدعو ہیں. تو ہم ان سب سے بات کریں گے کہ اس سارے سسٹم کو ہم خواتین کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں اور ہمیں آگے لے کے کیسے چلنا ہے. It is we teach this society, we teach the male what is love, what is care, what is sharing. اور امیجن کریں اگر عورت نہیں ہوگی تو وٹ ول بھی درمیان جو پیار محبت کے تعلقات ہیں وہ عورت کی بنا ادھورے ہوں گے. Imagination, positive note, let us just commence today's event. Officially, I want to say welcome to Ms. Sana Mirza. Please come over here and give their opinion, their views about the contribution of the female journalist for society. Can you please come in? اور خواتین کا کردار، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین پچھلے میرا خیال ہے ایک سے زیادہ ڈیکیڈ تو مجھے ہو گئی ہے. میں نے میرا خیال ہے جب سٹارٹ کیا تھا اپنا کریئر تو 2005 یا 4 کی بات ہے، تو بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے. اور میں اس میں بہت زیادہ فلسفیانہ ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں کچھ موٹی باتیں ہیں جو ضرور کرنا چاہتی ہوں. پرسنلی مجھے لگتا ہے جتنی خواتین سے میں ابھی تک یہاں ملی ہوں، ہر ایک کے پاس اپنی ایک سٹوری ہے، اپنا ایک اسٹرگلنگ فیز ہے، اور اس نے اپنا ایک پورا پیسج گزارا ہے زندگی کا جو اس کریئر میں اس نے دیکھا ہے. اور اوبویسلی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ اسٹرگلنگ رہا ہو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جو اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اوبویسلی وہ لوگ زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اسکرین سے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور اسپیشلی خواتین کا میں اس لیے کہوں گی کیونکہ جب میں نے کچھ تھوڑا سا ٹائم اپنے کریئر کا فیلڈ میں کام کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ آشنا ہے، کیونکہ بلوچستان کی جو عورت ہے وہ مطلب ان کے پاس اس طرح سے پہلے مطلب اس طرح سے ان کے پاس شاید شعور نہیں تھی، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں اپنی ذات سے ہوتا ہے. تو چونکہ میرے گھر میں ہمیشہ سے میں یہاں آ کے میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ کیونکہ آپ کہانی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی ہیں، تو میں نے جب دیکھا کہ مطلب حقوق واقعی، لیکن میرے گھر میں تو حقوق اس طرح سے شاید مجھے کوئی شعور نہیں تھا. آج خواتین کی عالمی دن کے موقع پر میں یہاں پر تشریف لایا ہوں اور پنڈی اسلام آباد میں سے یہ پروگرام تقریب اور خواتین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ایک لمبی تاریخ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین کے حوالے سے جو کام کیے ہیں، قانون سازی کی ہے، جو کام کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اگر آپ خاتون وزیر اعظم کی بات کریں تو سب سے پہلے ہماری جو ہے امت مسلمہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ہم نے خاتون اسپیکر خاتون اپنے ایمبیسڈر یو ایس میں لگائی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گلگت پہلی خاتون گورنر پاکستان پیپلز پارٹی میں لگائی. اور مختلف منسٹریز میں مختلف جو ہے اگر آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز دیکھیں پارلیمنٹ میں، اس میں خواتین کو نمائندگی. تو لہٰذا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ایک تاریخ رہی ہے خواتین کے حوالے سے، اور خاص کر خواتین کو امپاور کرنے کے لیے جو میڈیکل سپورٹ پروگرام کی بنیاد 2008 میں رکھی گئی، محترمہ شہید کے خواب کی تعمیر کی گئی. وہ آج تک اس میں اتنی ٹرانسپیرنسی کہ آج تک دنیا اس کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے. لہٰذا خواتین کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا. سر، کوئی میسیج آپ میلز کو دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے، خاتون جو ہے جو باہر نکلتی ہیں نوکری کے حوالے سے یا کوئی بھی اپنی سروسز کے حوالے سے، جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مجبوری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس معاشرے میں خاتون کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اپنی ماں، بہن اور بیٹی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज 8 मार्च का दिन जो है बहुत अहम है ख़वातीन, पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। जहाँ जहाँ हमारे हुकूक़ सल्ब हो रहे हैं, जहाँ जहाँ औरत जुल्म की चक्की में पिस रही है, जहाँ जहाँ औरत अपने हुकूक़ से महरूम है, आइए सब मिल के इस दिन को ख़वातीन के हुकूक़ के हुसूल का दिन बनाएं। आइए सब मिल के ख़वातीन जहाँ पे महरूमियों का शिकार है, आइए पाकिस्तान की पासदारी करते हुए और जो क़वानीन में हुकूक़ मौजूद हैं उसका हुसूल मुमकिन बनाएं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करती हूँ कि ख़वातीन के लिए वो इक़दामात करें ताकि उनको सस्ता इंसाफ फराहम हो और माशरा उनके एक मज़बूत माशरा, एक महफूज औरत और एक मज़बूत कौम उठे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखें, आज के हवाले से बुनियादी जो डिस्कस है वो फीमेल जर्नलिस्ट औरतों के इश्यूज़ को कितना हाईलाइट करें। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना बुनियादी मसला नहीं है। गरीब तबके की औरतों के मसले अलग हैं, मिडिल क्लास की औरतों के अलग हैं, अपर क्लास की औरतों के लड़कियों के इश्यूज़ अलग हैं, स्टूडेंट्स के अलग हैं, गैर की बच्चों के अलग हैं, सिंध के अलग हैं, थर के अलग हैं। तमाम इश्यूज़ को ड्राफ्ट करके उसका सॉल्यूशन न सिर्फ रियासत को देना चाहिए, न सिर्फ गवर्नमेंट को देना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाबंद करना चाहिए कि जो चीज़ें आइन में हैं, यूनिट चार्टर में हैं, उस पर अमल कराएं। कानून में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन अमल कोई नहीं होता। मिनॉरिटीज़ की औरतें हों या दूसरे मज़ाहब की औरतें हों या लड़कियां हों, बुनियादी तौर पर जब तक औरत खुद कफील नहीं होगी, एजुकेशन उसको नहीं मिलेगी, जब तक उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उस वक्त एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। और मदर टंग में तालीम देना। दूसरी बात, औरत ही बुनियादी तौर पर नेशन बिल्डिंग में उसका रोल है। शी इज़ मदर, शी इज़ टीचर, शी इज़ डॉटर, बीवी है। औरत का हर जगह मुख्तलिफ रोल है, लेकिन हमारे हुक्मरान तबकात को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, न सिर्फ जर्नलिस्ट, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हमारे जर्नलिस्टों के अंदर इंटरेस्ट आ गया है, पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट आ गया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ गया। ये गलत तरीका है, प्रोपेगेंडा का तरीका। बहुत सारे जर्नल ऐसे पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नहीं, आवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए, मसाइल के हल का रास्ता निकालना चाहिए। दैट्स द बेस्ट थिंग। दे हैव टू लीड। सियासी शौर बुनियादी चीज़ है। थैंक यू। आज वुमेंस डे है और मेरा ख्याल है कि हम हर साल ये दिन मनाते हैं, लेकिन सिर्फ मनाना मकसद नहीं है। आपको ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि अगर आप औरत हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात क्या हैं और आपके हुकूक़ क्या हैं। और अगर आप मर्द हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं आप उन्हीं की तरफ खुश रख सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यही ख़वातीन हैं जो आपकी वालदा, आपकी वाइफ, आपकी बेटी हो सकती हैं, आपकी नवासी हो सकती हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से मर्द हजरात शायद अपने घर की ख़वातीन से बाहर की ख़वातीन को वो नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा माशरा होता है उसकी नज़र में हर औरत एक इनफरादी हैसियत रखती है। और अगर आप औरत को उसके टैलेंट, उसकी सलाहियतों के बिना के ऊपर जज करेंगे तो चाहे वो आपकी अपनी फैमिली का हिस्सा है या अजनबी है, आप यकीनन उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और आप उसको रिस्पेक्ट भी देंगे। आज के दिन मेरा सिर्फ मैसेज इतना है कि चाहे आप औरत हैं या आप मर्द हैं, ख़वातीन जो डिज़र्व करती हैं अपने टैलेंट की बुनियाद पे, अपने हुकूक़ की बुनियाद पर, एक इंसान होने के नाते आपको वो सब कुछ उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उनका भी इस दुनिया में उतना ही हक़ है जितना आपका। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ख़वातीन के हुकूक़ न सिर्फ समझने के लिए बल्कि उनके फ़राइज़ मर्दों को समझाने के लिए ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया। और मुझे ये इस बात की खुशी है कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों ने भी इस प्रोग्राम में बराबर का हिस्सा लिया। अब जहाँ तक बात आती है कि ख़वातीन के हुकूक़ की, तो वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़वातीन को मुख्तलिफ़ हुकूक़ दिए जाती हैं और उनके मुख्तलिफ़ फ़राइज़ हैं, लेकिन हम उन्हें एक ही कैटेगरी में रखने के लिए कोई ख़वातीन किसी से कम नहीं है। वो माशरे का वही काम करती हैं, बल्कि उससे ज़्यादा काम करती हैं जो मर्द करते हैं। अब वो उस ज़हनियत के लिए हमारा ये मकसद सिर्फ ज़हनियत को बदलना है कि
उस सोच को चेंज करना है जो मनफी है ख़वातीन के मामले में। जो ख़वातीन भले वो घर से निकल के आई हैं, भले वो मीडिया पर्सन हो, भले वो जो हो वर्किंग क्लास हो, वो घर से निकली है तो वो ज़रूरत के तहत निकली है और उसका भी इतना ही राइट है माशरे में जितना कि एक मर्द का। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ख़वातीन का किरदार। देखिए, हमने मीडिया की ख़वातीन को खुद भी इतने चैलेंजेस का सामना है कि वो अपने मसाइल से निकल कर उनके ये ज़्यादा मेहनत करती हैं उन ख़वातीन की निस्बत जो घरों में बैठी हुई हैं। एक खुद मीडिया में मसाइल फेस करती हैं और इसके बाद जो है वो उन ख़वातीन के जो घरों में बैठी हुई हैं, जो जिनके हकूक़ नहीं है, जिनके वेजेस नहीं है, जिनकी सैलरीज़ नहीं है, जिन पे तशद्दुद किया जाता है, वायलेशन की जाती है, उन ख़वातीन के हकूक़ को उजागर कर रही हैं। तो आज जो ख़वातीन का जो किरदार है, मैं सलाम पेश करूँगी मीडिया की तमाम ख़वातीन को जिन्होंने अपनी मजबूरियाँ काट के, अपना टाइम काट के, अपने बच्चों का वक्त काट कर वो उन ख़वातीन के लिए वक्त करती हैं जो कि उनकी आवाज़ जो ईवान तक नहीं। आज का दिन ख़वातीन के हवाले से मनाया गया है और इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, इंतज़ामिया का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को मैनेज किया है। ख़वातीन के हकूक़ कोई नई बात नहीं है। ख़वातीन के हकूक़ हमेशा से पूरी तरह से अदा नहीं किए जाते रहे और आजकल भी बहुत सारी चीज़ों पे ख़वातीन मसाइल का शिकार हैं। ये हम लोगों का फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात पे ये ज़िम्मेदारी आती है, वो जिस भी हैसियत में है, ख़ावंद हैं, भाई हैं या बाप है या बॉस है, तो उनको चाहिए कि ख़वातीन के हर तरह के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। और ख़ास तौर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू आजकल चल रहा है वो ये है कि ख़वातीन को जो ज़हनी कोफ्त और हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रही हैं, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। किस तरह इस बात पे गौर करने की और इस बात पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको इम्पोर्टेंस का पता ही है ख़वातीन का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैरी ऑन करना चाहिए।